Keshav, are you there? Can we see you? Sir, am I audible as visible? Audible as well as visible, and you're looking absolutely ready. Yes, sir. तो केशव स्टार्ट करिए, आराम से बताइए कि आपने कब फौज में जाने के बारे में सोचा और कितने एसएसबी एसएसबी अटेम्प्ट आपने लिए हैं, कहीं कोचिंग शोचिंग पहले ली थी तो क्या ली, कब नो फ्रिल्स एकेडमी में पहुंचे और ये आपका कौन सा नंबर अटेम्प्ट था। तो इतने सवालों का पहले जवाब दीजिए यार, इत्मीनान से, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। Okay, sir. उसके बाद फिर हम आगे की बात चलाएंगे। Okay, sir. या So basically, sir, the idea of joining army came in my mind when my friend got recommended after class 12th. Initially, I was not very much aware about the armed forces, and I had no interest in joining the armed forces. So when he got recommended, I had a little inclination towards. I got the little inclination towards armed forces. Then after in college, I joined NCC, and there I was very much clear after that I would be joining armed forces only. So for it, I started preparation for the written exams in my last year only. And as far as the coaching point of view is there, sir, I used to watch a lot of YouTube videos from my last year only, and a lot of content. And then only I came across your book, and I read it before joining No Frills Academy only. And then I felt that I should definitely go. आफ्टर लाइक सर एक दो साल बाद आई फेल्ट जब बुक से आई वाज फीलिंग कि इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर माय गाइडेंस देन in 2000 I started my attempts in December 2020, but I joined No Frills Academy in February 2022. So when I joined No Frills Academy, already I gave around 10 to 11 attempts. So most of them were screen outs although. So then after I felt that I should take guidance from you. So in Feb 2022, I joined No Frills Academy, and it was my 19th attempt, sir, in which I got recommended, and it was my sixth conference. ओके ओके। So, so तो पहले कहीं कोचिंग लिया था, नहीं लिया था? सर कोचिंग नहीं लिया था। मेरे व्हेन आई वाज इन एनसीसी, तो माय कमांडिंग ऑफिसर वाज साइकोलॉजिस्ट इन इलाहाबाद बोर्ड. So I used to have interaction with him on my WhatsApp. So that was it, sir. बाकी YouTube वीडियोस वगैरह और that's it, sir. दैट इज इट। Yes, sir. ओके, वेरी फाइन। तो क्लैरिटी अप्रोच में आनी कब शुरू हुई, या क्या डिफरेंस आपको लगा जब आप नो फ्रिल्स एकेडमी में आ गए? योर अप्रोच प्रायर टू ज्वाइनिंग नो फ्रिल्स एकेडमी एंड सब्सिक्वेंट टू ज्वाइनिंग नो फ्रिल्स एकेडमी। Sir, the biggest change that I felt, initially, I was very much desperate, and I was just focusing on my SSBs and all only, and I was not looking at myself, and I was just checking कि what I did wrong in last SSB, क्या नहीं ठीक नहीं रहा, क्या गड़बड़ हो गई. Every time things changed, but the result was same. So all in all, I was not focusing. After joining Novels Academy, after your guidance, I started to look at my life. Like you asked me to join the job. When I joined Novels Academy, I was not working. Then after I started to look for the jobs, I joined the job. I worked on my routine, sir. And in the meanwhile, when I was not getting any job, I tried to be active in my daily routine. When I got the job, my routine changed accordingly, sir. And in the long run, things changed, and my focus was towards my job and all the things, my life. And somehow I started to be detaching from the SSB part. Now I was more focusing on my job and all things. And SSB में जाता था, तो उस टाइम पर I was just present. But लेकिन वापसी जब मैं आता था, तो I was just focusing on my things. तो पूरा टाइम मैंने फोकस, तो जो गोल पोस्ट था थोड़ा वो चेंज हो गया सर. और फिर शायद वहीं से चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई. ओके ओके, वेरी वेरी नाइस। तो अब जो है, यू वुड बी वेल अवेयर सिंस यू हैव रेड माय बुक सर एंड अच्छा, बुक का बताइए, व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू फाउंड मोस्ट यूजफुल? सर मोस्ट यूजफुल पार्ट आई फील
not only in SSB, sir, but in life, the scarcity mindset and abundance mindset, sir. Because I feel in this world, most of the people are living with the scarcity mindset, sir. So somehow I, I was also with that, because screening में वो चीज बहुत हो जाती थी, और लाइफ में भी I was having scarcity, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा सर, और पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. बट आफ्टर ज्वाइनिंग यू, एक लाइक आई काम डाउन स्लोली, और वो स्कैरसिटी माइंडसेट वाला पार्ट आई ट्राई टू अप्लाई सर. क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसा ये चीज समझ गया कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है. इफ यू आर केपेबल तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी. तो सर वो चीज आई फेल्ट कि मेड अ ह्यूज डिफरेंस. मेरी डेस्परेशन कम हो गई सर उससे, एंड मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगा कहीं पर भी जाने से. ओके, गुड गुड गुड. अच्छा, एक और बात बताइए. यू वुड बी अवेयर दैट आई एडवाइज ऑल एनसीसी वाले कैंडिडेट्स कि सर भाई एनसीसी के भरोसे मत रहिए, रिटन सर एग्जाम देकर जाइए. व्हाट आर योर सर व्यूज ऑन दिस? सर आई टोटली एग्री विद यू. एनसीसी एंट्री लोग सोचते हैं इज अ शॉर्टकट, बट इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो यू शुड ट्राई टू क्रैक क्लियर एवरी एग्जामिनेशन टुवर्ड्स इट. So definitely written entry, sir. I felt till all the in all my attempts, CDS IMA is my best entry, I would say. So written entry makes a huge difference, sir. So and in fact, interviewing officer also see that you have cleared the written attempts. So he also got impressed from this part, sir. Okay, Sir. okay. उसको लगता है कि ये जेन्युइन आदमी है, खाली ऐसे ही नहीं आ गया है. Yes, sir. बिल्कुल. क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो बट आपके रिटर्न क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन कि ऐसा क्यों हो रहा है सर. Understood. अच्छा, अब नो फ्रिल्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद ये कौन सा नंबर अटेम्प्ट था आप? एग्जैक्ट नंबर तो आई वोंट बी एबल टू कोट, बट अप्रोक्सीमेट. सर इट वुड बी माय 7th अटेम्प्ट, आई गेस, अच्छा, 7th अटेम्प्ट. सर. ओके, फाइन. So, in your 7 attempts which you had after joining No Frills Academy, सर what were the changes you were noting in your performance? सर in terms of exactly in terms of SSB, I would say GP का approach I changed after your guidance. And SRT SRT, sir, I was just focusing कि crisp and short लिखूं, and that's why, sir, इस attempt में I was able to attempt 50. So last पीछे के attempts में भी, sir, I was able to attempt reasonable number of SRTs. So crisp and short. And sir, in starting में I was focusing more about stories, जब मैंने No Frills Academy join नहीं की थी, कि how to write, how to like add plan and actions, ये सारी चीजें. But after reading your book, after your guidance, तो I felt कि simple stories ही होती हैं, इनसे भी बात बन सकती है सर. तो मैं सोचना ही बंद कर दिया सर. And I never started, and I was never looking at the SSB pictures and all. मैं सीधे वहां जाता था अटेम्प्ट में, और बस कॉन्शियस होके उस पर लिख देता था सर. तो सिंपल सी स्टोरीज वर्क सर. And when did you start feeling कि अब मैं ऑलमोस्ट वर्ड्स पे हूं और बात बन जानी चाहिए? सर इन माय लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, व्हेन आई वेंट फॉर द एनसीसी एंट्री, उस वाले अटेम्प्ट में आई फेल्ट कि आई वाज वेरी मच close, because everything went fine, and then after I talked to you as well, so you just said कि आपकी बात जल्दी बन जानी चाहिए. तो I felt कि I am very much close, sir. So that was the attempt, Understood. sir. Now give us a brief of the present attempt where you were successful. Briefly screening, ठीक psychologist, GTO, interview in that sequence. मोटे मोटे 4-4, 5-5 पॉइंट सबके बताइए. ठीक है. So starting from the screening, OIR test came, so I was able to attempt all the OIR tests, and I felt that I was able to score a reasonable good marks, sir. And coming to the screening part, the image came, and so I just wrote the story related to the image. I didn't any planned something big. Very simple story, sir. Then after in narration, I gave the crisp narration in the given time. So narration part was also good. In GD, I just tried to contribute my part, and I was trying to take the discussion ahead. So 2-3 times I participated, and it was okay. And also I was opted as a common narrator of the story, sir. So after screening, coming to the psychology part, ये uh, कितना रिपोर्टिंग थी?
सर 151 की रिपोर्टिंग थी। और ये कौन सी एंट्री थी? सर एफ कैट एंट्री। F। ओके, सर और कितने स्क्रीन इन किए थे इन्होंने? सर 64। 60। ओके, सर वेरी। हाँ। सर अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। यू सर नो, हमारे पास ही कितने स्टूडेंट हैं वो 19, 28, 21st अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे हैं, सर लेकिन फिर भी इतने लोग बोलते रहते हैं कि 10-11 के बाद तो भाई बायस्ड हो जाते हैं, वो तो वैसे ही स्क्रीन आउट कर देते हैं, सिलेक्शन इलेक्शन होता नहीं है, नो दैट काइंड ऑफ थिंग यू वुड बी हियरिंग। व्हाट वर योर थॉट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड? सर मैं जब रिकमेंड नहीं हुआ था उससे पहले मेरे थॉट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं सर वो ये सोचते हैं कि सब कह रहे हैं, रिपीटर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो ठीक ही कह रहे होंगे। बट सर ऑनेस्टली टेलिंग, एवरी अटेम्प्ट इज अ डिफरेंट अटेम्प्ट, बिकॉज मैं एक हफ्ते पहले ही कोस्ट गार्ड की एसएसबी कराया था एंड आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट देयर, और आई नो माई परफॉर्मेंस वॉज लैगिंग देयर, दैट्स वाई आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट। एंड एक हफ्ते बाद ही सर I tried to perform my best in every task, and sir, result changed. So every attempt is a different attempt, sir, I would say. Okay, very good. Fine. This is a good input for all who are listening. अच्छा, अभी साइकोलॉजी टेस्ट का बताइए। Sir, so in psychology test, I was able to write every story in a comfortable manner. So ऐसा rush नहीं था within given time, because in the time in 30 seconds I was just observing the picture. In the meanwhile, I was just framing, and then after I was able to write in the given time, sir. So I wrote all the that comfortably. Coming to vet, sir, I wrote vet, but because a few sentence got stressed, तो मेरे वेट सर स्टार्टिंग में 6-7 छूट गए थे। तो फिर आई kept this in my mind and I had thought to cover it in the SRTs, so that I have a extra time, and then after I'll come to vet and I'll just complete it. So I started to attempt the SRTs. सर मैं जल्दी जल्दी करा था, और देन आफ्टर आई थॉट टू स्टॉप एट 45, बट फिर मेरे को लगा 50 तक करके वुड बी अ सेफ स्कोर। सो 50 पर करके आई स्टॉप्ड, एंड देन आई गो वेंट बैक टू द वेट, और फिर मैंने वो 6-7 वेट जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट किए। अदरवाइज आई वुड हैव अटेम्प्टेड मोर एसआरटी, सर। तो सो अब आप एक बात देखो कि जिस आदमी के पीछे पुलिस पड़ी हो वो तेज भागता है। सर सर हैं? वो होता है सर, बिल्कुल। हाँ, और कंसंट्रेशन भी अच्छी आती है ना फिर। अच्छी आती है, बिल्कुल सर, एकदम फोकस रहता है। तो बच्चे ये बात जिंदगी में याद रखना, सर when pressure is not there and सर when you are in command positions and when there is nobody to observe, सर be your own auditor, okay? यस सर, बिल्कुल। हाँ, कि मैंने ठीक ठाक परफॉर्म करना है, नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा पीछे। यस सर, इट बिल्कुल। रिमाइंड्स मी, जब मैं क्रॉस कंट्री भागता था, सर तो मैं थर्ड टर्म फोर्थ टर्म वगैरह में कई बार हालत खराब होती थी, योर हार्ट, लंग्स एक, योर लेग्स एक, सारे वो होते थे। यस सर। रुकने की दिल करता था। हाँ सर, बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि यार अगर मैं सेकंड टर्मर होता हाँ और पीछे से कोई जो था क्रॉस कंट्री कैप्टन सोटी लेके आ रहा होता तो क्या मैं रुकता? एंड सो आई यूज्ड टू से कि नहीं रुकता। तो मैंने कहा नाउ आई विल बी माय ओन ऑडिटर एंड मैं नहीं रुकूंगा, आई विल कीप पुशिंग माय सेल्फ डिस्पाइट द पेन एंड ऑल दैट, आई विल कीप गोइंग थ्रू। यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो दिस इज अ गुड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स योरसेल्फ। यस और सर, वो बिल्कुल। दिन है, मैं अभी भी नहीं रुका हूँ। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, प्रोसीड बेटा। सर, so by SRT, sir, I was able to complete all my VETs as well as 50 SRT, sir. Then after I wrote SD in the reasonable time, and in comfortable manner, the SD that I shared with you as well. So the similar SD I wrote there as well. Coming to my, sir, then after on my second day and third day was my group तो task. आपका जो कोस्ट गार्ड में जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट का रेस्पॉन्सेज रहा होगा और सर इसमें कोई हार्डली डिफरेंस रहा होगा कुछ? सर बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहा होगा सर, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अंडरस्टूड, वेरी यस नाइस। सर। आप प्रोसीड, यस सर। कम टू जीटीओ। सर, so in GTO, starting with the GD part, in first GD, sir, I was able to contribute 3-4 times, sir. So, but in second GD, the rush started, but sir, I have a habit that I can't shout out in between. So I just tried to find the gap, but then even I was able to speak, sir, only one time, because group started to rush in the second GD. So I kept my calm, and I kept your like word in my mind that you have to be just calm down and you will get your chance. So I just kept my calm. I was able to spoke one time only. Then after coming to GP, sir,
I completed my solution in the timely manner. I saw that I was able to complete, and then even people were writing. So because of the tabular format, I was able to complete in the very reasonable time, sir. And then after, sir, coming to the GP discussion, the same hurry and rush started. So I tried to give my points and contribute my points, but group was not in that mood to like listen anyone point, and they were rushing, sir. So I just tried, sir. That's it, sir. And then after coming to the PGT part, sir, PGT. नहीं, क्या आपको नॉमिनेट किया था उन्होंने प्लान बनाने के लिए, या कोई उनका वो बेवकूफी वाला काम कर रहे थे, बंदर के पीछे भागने वाला वगैरह वाला कुछ ऐसा था? सर एक मेरे को याद है कि पॉइजन टैंक वाली एक प्रॉब्लम थी। तो दैट पर्सन सेड कि हम जाकर पॉइजन टैंक, वहां पर मिसक्रिएंट जाएंगे, उन्हें पकड़ लेंगे और पॉइजन टैंक में पॉइजन नहीं डालने देंगे। तो और जबकि वहां पर पुलिस चेक पोस्ट थी, तो मैंने कहा ये इसका कोई मतलब नहीं बनता, जब वी हैव पुलिस चेक पोस्ट, व्हाई नॉट टू इन्फॉर्म। सिंपल सॉल्यूशन, सर। तो सो मान लिए उन्होंने बात, आपकी नहीं मानी? सर वो नहीं माने, सर, क्योंकि वो नहीं बहुत माने? तो मैंने सर अपना पॉइंट दिया और मैं कोशिश करता रहा, सर, लेकिन वो नहीं माने, तो फिर मेजोरिटी विन, सर। मतलब सिलेक्शन के लिए डेस्परेशन बुरी तरह से थी। बहुत ज्यादा, सर, बहुत थी, सर। एंड बेटा आप बाकी लोग देखो, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, सर। बिकॉज यू सी एवरीबडी हैज गॉट कॉमन सेंस। सबको असल में कोई, आप ये पॉइजन मतलब जो है मिसक्रिएंट जो के आर्म वगैरह हैं, उनको रोकने आप खुद नहीं जाओगे, आप पुलिस को ही बताओगे। पर लेकिन क्योंकि डेस्परेट है जनता सेलेक्ट होने के लिए, इसलिए ऐसा काम कर रही है। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड यू मस्ट गो बाय सैनिटी एंड प्रमोट आइडियाज विच आर सेंसिबल, which exactly what Keshav, friend, are who successful, was doing. So Keshav, you are on the right lines. That is सर। what you should do. सर। Maybe you could have persuaded them, tried to persuade them a little more. सर। ये आई देखो एग्री। क्या है ना, प्लान ऐसा है, प्लान इज नॉट लाइक अ स्टोरी। सर। क्योंकि कॉमन स्टोरी बनाना वो एक बात है, वो तो स्टोरी है। सर। अब ये प्लान एग्जीक्यूट करनी है। सर। अब एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान ऐसी जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, जो ठीक नहीं हो, उसका पार्टी होना, इट्स नॉट सर। करेक्ट। सर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एग्जैक्टली, सर। सो हाँ, ठीक है, सर, हाँ। आई जस्ट पुट माई दिस पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट पर पीपल वर एग्री कि अच्छा, हाँ, अननेसेसरी हम आर्म्ड उनसे क्यों जाएं। वन पर्सन गेव पॉइंट कि देयर आर 2 3 एंड वी आर ग्रुप ऑफ 8, सो वी कैन हैंडल। सो आई जस्ट गेव माई पॉइंट कि दे कुड बी आर्म्ड, वी आर नॉट श्योर, तो व्हाई नॉट टू, व्हाई टू बी रैम्बो, वी कैन जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस इफ वी हैव। सो दे टुक दिस पॉइंट ओनली, अदरवाइज GD was very rush, sir, in GP. अच्छा, रैम्बो वर्ड तुम्हें याद आ गया था? सर, नॉट एग्जैक्टली आई रैम्बो, सर, उस टाइम मैंने रैम्बो यूज नहीं किया, बट आई सिंपली सेड। अच्छा, बस सिमिलर थी, हाँ, हाँ। understood, हाँ, understood। यस सर। हमने रैम्बो यूज किया हुआ था बुक में word। अच्छा, अच्छा, ओके सर, यस। सो चलिए आगे। फिर उसके बाद सर एक चीज और थी कि मेरे ग्रुप में सर 2 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे। तो ओके। ग्रुप ऑलवेज हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स देम कि हाँ रिकमेंडेड हैं, तो मतलब कुछ ज्यादा आता होगा। तो मैं, सर, मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो था कि 2 रिकमेंडेड है मेरे साथ, वो रहता है, सर। बट फिर भी मैंने आई ट्राई टू परफॉर्म इन एवरी टास्क। अपने हर टास्क के साथ मैं कोशिश कर रहा था कि नेक्स्ट टास्क में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, सर। फिर सर पीजीटी की बात। इन पीजीटी initially the task were quite simple, so every many people used to have ideas, sir. So I was behind only in PGT 1 and 2, but in PGT 3, when people got stuck, I got the chance to went ahead. So there I was able to give 1 2 ideas, sir, only in PGT 3. And then after GTU completed the PGT exercise in the PGT 3 task only. So he didn't allow us to go for the PGT 4 task. So then after the group obstacle race, I just tried to keep my group together and just support as much as possible and try to cross obstacles in the time, sir. So it was okay, sir. And then after, sir, half group task, it was reasonably simple, sir. So we were able to complete it within 4 minutes, I would say. The half group was very cooperative. So everyone gave one idea or something, someone was doing something. So it was very simple, sir. Then after, sir, lecturate came, and my topic was, sir, crime control. So I put my points on the topic. I tried to organize the thoughts, but some thoughts were coming later in my mind, like financial crime and all. So
I later on added those part as well. So I was able to speak for 3 minutes. Although I feel that my topic could have been more organized, but I was able to give my lecturate within the given time and reasonable points arrives. And then after, sir, uh, next day, the command task, sir. So uh, in command task, one strange thing happened with me. Like initially, three candidates were called. Then I was called at fourth. So my customer was called. When I was walking, suddenly GTO told me to went back, sir. So I went back. Then I said, and then GTO called me at the last, sir. So I don't know why he called me in between, and then why like he suddenly changed his mind. So in command task, I was given the obstacle to retrieve a load from one point and come back to the same line, sir. So when I give the first idea, he then changed the idea. So basically, there were three solutions from in that command task only. So पहला solution देने के बाद sir he changed, फिर दूसरा मैंने दे दिया sir, and फिर दूसरे के बाद भी he again changed, फिर तीसरा भी दे दिया. The main thing sir I used to keep in the command task कि मैं sir कभी भी ऐसा नहीं है कि पहले मैं लोड लगाना स्टार्ट कर दूं या फिर मैं रस्सी बांधना स्टार्ट कर दूं. I used to पहले first think कि what could be the solution, then after I used to act only, sir. So I feel this has helped me, sir, because इससे we can keep our calm and हमारा mind भी सही direction में काम करता है, sir. So then after individual obstacles, सर इन कोस्ट गार्ड आई हैड अ बैक इंजरी. सो उसकी वजह से मैं खुद को फिट मतलब रनिंग वनिंग बिल्कुल बंद हो गई थी सर. तो मेरी फिटनेस वगैरह बिल्कुल बेकार थी. तो आई अटेम्प्टेड 6 ऑब्स्टिकल्स बस, बट आई वाज एबल टू कंप्लीट 4 ओनली, सर. सो एट दैट पार्ट आई फेल्ट कि आई कुड हैव परफॉर्म मच बेटर, सर. सो individual obstacles is done, sir. Then after FGT, sir. In FGT, I tried to give the ideas, but group was in rush. So one idea I gave, so they took that idea. That's it, sir. And that FGT was done, sir. And then my interview was in the on the fourth day. And Just one second, I will sir, interrupt you a bit. sir. How did your regular interactions with the group help you as far as the GTO tasks were concerned? Sir, what I feel that group used to have a good, we were having a good interaction in the group. And in GD1, I feel that group was listening because might be they know that the person talks reasonably well. So GD1 I felt, but then after their scarcity came over on them, and they started to rush from the second GD, sir. No. You did not get my question. I'm Sir, saying, how did the group interactions in No Frills Academy on a okay, sir. regular basis Sir, help you in the entire GTO series? okay, sir. Sir, basically, from last 4 to 5 months, I was not able to participate in the group activities, but initially I participated very regularly, sir. So especially the GDE part, GPE part, I used to like practice with the group in the group activity. So like it gave me the more realistic feeling, and how and gave me the chance to know more about the topics, or gave me the chance to know that कि हाँ अभी भी I'm lagging the knowledge part. तो वो चीज कहीं ना कहीं has pushed me, and I started to gain knowledge on the topics. And GPE का जब discussion होता था, तो I was able to find कि हाँ I was able to give the reasonable points. So somehow that has helped and boosted my confidence, sir. Very fine. Proceed. Now come to the interview part. Okay, sir. So, sir, my interview started with my job only, sir. And he's asked about my job. He asked about my GTO performance. Okay, how was your GTO performance? So I genuinely rated the performance. Like, so I would say it was second best or third best, sir, because I could have performed much better, sir. So I genuinely said and he asked about all the questions like percentage drop and all. So, sir, without any fabrication and all, I genuinely replied all the questions, sir. Then after he asked me about the coaching, okay, have you taken coaching, sir? Then I told him about the Nofils Academy. Say, yes, sir. I took guidance from Nehru, sir. So he said me, कि there are coachings in Delhi. Why didn't you take? So फिर I said कि No Frills Academy provides more of a guidance program. So Nehru sir guides me.
So in organizing my things and routines and all, sir. So he guided me, and practice वगैरह I never did, sir. So I just said him very like the reality, sir. And my interview went for about 35 minutes, as the interviewing officer said that we talked for 35 to 40 minutes. And he was just asking my questions. He just asked more about my percentage drop only, and then after he was switching the questions, and it was more on the PIQ based. Then after, at the end, he asked about some of the aircrafts and some GK questions, and it was a simple interview, sir. With anything specific asked in the conference? Sir, in conference, the questions were very simple. Like I was preparing that if something would be asked, like I would give with the genuinity whatever would come in my mind. But I was preparing myself. But sir, nothing asked. Like it went for around 2-3 minutes only. Understood. Sir, कितने recommend हुए आपके बैच में? sir, 3 recommendation हुए. 3 ही हुए बस? Yes, sir. और तुम्हारे ग्रुप के जो 2 प्रीवियसली recommended थे उनका क्या हुआ? सर वो recommend नहीं हुए, सर. दोनों ही नहीं हुए? नहीं, सर. But were they good? Sir, one was from No Frills Academy only, and अच्छा. yes, sir. तो उसका मेरे को लग रहा था कि he'll get through. Okay. हाँ, तो he was close, I feel, but I don't know, sir, कहाँ रह गया, but उसकी बात बननी चाहिए थी मेरे हिसाब से. तो नो फ्रिल्स एकेडमी के बारे में काफी लोग जानते हैं? सर मेरे ग्रुप में 3 लोग थे नो फ्रिल्स एकेडमी के, इंक्लूडिंग मी. ओके. तो वो चीज ने मेरे को हेल्प भी करा जीडी में, क्योंकि वो देवर काम पीपल, वो ऐसे शोर नहीं मचा रहे थे. तो बाकी सर जानते तो सभी हैं सर, आपको सभी जानते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह तो एटलीस्ट सभी ने देखी ही है, सर. Understood. Okay. Now you see, Keshav, you are in a pretty unique position. What's your age now? Sir, currently it is 24 years, 10 months, sir. Okay, fine. So you are on the higher age bracket and you've been working for how many years now? Sir, it's been 1 year, 3 months, sir. So what is your advice to the aspirants who are, you can look back at your career, कि कहाँ गलती की, राइट फ्रॉम 12th में तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ग्रेजुएशन के टाइम से जब आपने अटेम्प्ट दिया, हाउ कुड यू हैव स्पीडेड अप द प्रोसेस, एंड फिर क्या चीजें आपने ठीक ठाक रखी विच केप्ट योर सेंस ऑफ बैलेंस इन योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, एसएसबी एंड ऑल दैट, आप ऑब्सेस्ड नहीं हुए? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया दो, क्योंकि यू गॉन थ्रू द प्रोसेस, प्रीटी टफ टाइम, योर 19th अटेम्प्ट में आप मोटिवेशन रखा है, तो ये थोड़ा इन्हें बताइए कि क्या करना चाहिए आपके हिसाब से. सर, when you are giving any competition examination, तो give your 100%. कई बार ऐसा हुआ कि चीजें बात बनेंगी. रिटन एग्जामिनेशन सर मेरे स्टार्टिंग के 2 नहीं निकले थे सीडीएस, लेकिन फिर ये आई केप्ट ऑन वर्किंग, वो वीक एरियाज पे काम किया. सेम विद द एसएसबी. इनिशियली आई वाज गेटिंग स्क्रीन्ड आउट सर मेनी टाइम्स, सर. तो वो डिमोटिवेशन सर लाता है, बट आपको अपने ग्रे एरियाज पकड़ने हैं. और बाकी सर ये है कि आपकी गाइडेंस को अगर डिलीजेंटली बंदा फॉलो करेगा, और सर जब गुरु की गाइडेंस होती है तो हमें थोड़ा फेथ दिखाना चाहिए उस पर. तो फेथफुली होकर हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए खुद के साथ, सर. और वो लॉन्ग रन में इफेक्ट डालती है. अब मेरे को सर, मैंने आपको 2022 में ज्वाइन किया था, एंड अभी 2024 है, पूरे 2 साल लग गए. लेकिन लोगों को क्या है सर, थोड़ी जल्दबाजी है. मेरे को भी थी सर. मेरे को भी ये था कि जल्दी से 2-3 महीने में बात बन जाए, 5-6 महीने में पता नहीं कब होगा, सर. बट मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 2 साल लगेंगे, आपको ज्वाइन करने के बाद 1 साल लगेगा. कुछ भी मेरे को टाइम का पता नहीं था सर, किसी को भी नहीं होता. लेकिन सर चीजें विल कम ऑटोमेटिकली जब राइट टाइम होगा. मेरे को लगा था हो सकता है 12वें 13वें अटेम्प्ट में बात बन जाए, लेकिन कुछ नहीं. आप बस मेहनत करते जाओ और सही डायरेक्शन में इफ यू आर वर्किंग, तो वन डे यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम द जर्नी. और डेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है, वो अगर जितना कम होगा उतने सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे. एंड दैट वी कैन सी, जैसे आप गाइड करते हो कि वी शुड फोकस ऑन द जॉब एंड ऑल, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लाइफ पर फोकस करोगे तो एसएसबी वाला पार्ट
आपको प्रिपरेशन, एसएसबी के जो प्रोसेस है दैट इज अ लाइक ब्लड टेस्ट का तरीका। अगर ब्लड ही प्योर नहीं है तो सर ब्लड टेस्ट में तो गंदगी आएगी फिर। तो वी हैव टू प्योर आवर ब्लड। तो वो चीज हम लाइफ को सॉर्ट करके कर सकते हैं सर। मुझे भी मेरे परसेंटेज ड्रॉप्स हैं, मेरा गैप ईयर है, मेरे को लगता था पता नहीं कितने फॉल्ट्स हैं सर। और मुझे इंटरव्यू के बाद तो ये भी लगा कि मैं कर क्या रहा था लाइफ में सर, इतना मुझे गिल्ट हुआ। लेकिन ये है कि चीजें सर कभी भी ऐसा नहीं है कि देर नहीं हुई होती। आपने सर गाइड किया, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की, चीजें अलाइनमेंट में आनी स्टार्ट हुई। और सर फिर वो अलाइनमेंट में आते आते इतना टाइम लग गया सर। तो जब अलाइन हो गई तो सर चीजें फिर फाइनली आई गॉट द रिजल्ट्स। गुड। पर अब ये सवाल उठता है कि ये कैसे पता चले कि भाई राइट लाइंस पे काम कर रहे हैं। नेहरू तो बोल रहा है कि ये राइट लाइंस है, पर लेकिन इतनी दुनिया भरी हुई है, वो कह रहे हैं भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि दे आर ऑल ट्रांसमिटिंग योर इनसिक्योरिटीज टू यू, टू एग्जैक्टली सर। योर पेरेंट्स, सर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। एग्जैक्टली सर। तो उसको मामला कैसे, उससे आपने क्लैरिटी पकड़ी और कैसे काम करते रहे? सर अगर मैं फिर ये सोचने लग गया कि आप हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, या कोई भी ऐसा सर हमें कैसे ऑब्जर्व करता है, हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए जो अवेयर हो, जो अपना काम अच्छे से कर रहा हो, फिटनेस वगैरह ठीक हो, मल्टीटास्कर बेसिकली, हर चीज ठीक ठाक करता हो। तो फिर मैंने खुद को उस एंगल में देखा कि क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। सो आई वाज सेइंग सर कि मैंने पहले ये देखना स्टार्ट किया कि लाइक व्हाट यू पीपल विल सी इन अ नॉर्मल कैंडिडेट। सो लाइफ में अगर कोई बंदा ठीक ठाक कर रहा है, ही इज फिट इनफ और मल्टीटास्कर काइंड ऑफ पर्सन है, और फैमिली का भी ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द एज ठीक ठाक है, तो वो फिर मैंने खुद को अपने उस स्केल पे नापना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ सर। तो फिर सर मेरे को गैप्स दिखाई देने स्टार्ट हुए। लाइक मेरा रोल प्ले, मेरी फैमिली को लेकर, मेरे फ्रेंड्स को लेकर, वो सारी चीजें मैंने देखना स्टार्ट किया सर। तो मेरे को गैप्स दिखने स्टार्ट हुए, तो फिर आई स्टार्टेड टू वर्क कि हाँ कमी है। फिर मैंने आपका तरीका जब देखा तो वो भी वॉज इन द सेम लाइन कि जैसे गैप ईयर है तो जॉब वगैरह ये सारी, और फिर हम घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं तो समहाउ एक्सपोजर नहीं है, तो हमारी पर्सनैलिटी एक स्टैटिक हो जाती है। बाहर जाते हैं तो विल गेट टू लर्न अबाउट थिंग्स। मेरे को अभी कॉर्पोरेट के बारे में पता चला, वहां प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को पता चला कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने को मिली। तो कहीं ना कहीं सर मेंटल स्ट्रेंथ बनी। तो इन द लॉन्ग रन वो चीज वहां रिफ्लेक्ट हो गई होगी शायद। तो वो चीज सर इनसिक्योर, फिर हम जब धीरे धीरे करके अ, आपको जब चांस मिलेगा तो यू विल फाइंड कि हाँ चीजें इंप्रूव हुई हैं। लाइक फिजिकल फिटनेस जब आप वर्क करोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा मेरा स्टेमिना बढ़ा है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये छोटी छोटी चीजें सर जब टाइम के साथ हम ऑब्जर्व करेंगे तो दे विल गिव कॉन्फिडेंस कि हाँ इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। अब सर नॉर्मली होता है कि हम इस एस्पेक्ट से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं सर। उसकी सर टाइमलाइन वी कांट डिसाइड, वो टाइम के साथ अपने आप होगा। सर आपकी बुक की स्टार्टिंग में भी लिखा है यू विल गेट रिकमेंडेड व्हेन यू आर फिट टू। तो He said so. यस सर। सो आई टोटली एग्री विद दैट थॉट कि जब टाइमलाइन आप यू कैन डिसाइड, बट यू कैन डिसाइड द चेंज। तो कीप ऑन चेंजिंग, कीप वर्किंग। टाइम के साथ अगर चीज आनी होगी तो इट विल डेफिनेटली कम, नो नो वन कैन स्टॉप। Good, good, good. Very mature words and good advice for the aspirants सर who follow us and also Nobels Academy students. हाँ, अभी now I have nothing more to ask. तो आप या क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस हैं, 2 साल हमारे साथ रहे हैं, आपकी सुझाव क्या है हमारे लिए नोबेल्स एकेडमी के? सर नो फ्रिल्स एकेडमी एक ऐसे तरीके पे काम कर रही है विच इज वेरी डिफरेंट। और लोगों को थोड़ा डाउट होता है स्टार्टिंग में कि ऐसे ये तरीका काम भी कर सकता है क्या। लेकिन जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आते हैं, और जैसे सर मैंने चेस नंबर 55 का एग्जांपल दिया, तो ही ऑल्सो ओज ऑल हिज सिलेक्शन टू यू ओनली। ही सेड टू मी व्हाइल वी वर डिस्कसिंग इन द ग्रुप कि हाँ कि सर की वजह से ही हुआ है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स जब आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस देते हैं। तो सर आई फील कि नो फ्रिल्स एकेडमी थोड़ा एग्रेसिवली अगर उस चीज को पुश करेगी तो वो कैंडिडेट्स तक पहुंचेगी शायद, और ज्यादा कैंडिडेट गलत डायरेक्शन में आने के सही डायरेक्शन में जा पाएंगे सर। पर अब हमारी स्केर्सिटी मेंटेलिटी है नहीं। हाँ सर वो आई नो। अभी क्या करूं मैं? वो सर आई अंडरस्टैंड। मेरी नहीं है एक्चुअल में। हाँ सर मुझे पता है, वो मैं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि समझदार लोग हैं, अपने आप समझ जाएंगे बात। हाँ सर वो है, लेकिन इंटरनेट पे सर इतने ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं,
इतना ज्यादा मिसलीडिंग थॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन सर। तो इसलिए आई फील कि जो सही चीज है, सही दिशा है, अगर किसी को थोड़ा कैसे भी मिलती है। प्रमोशन का ये चीजों को हमें थोड़ा और करना चाहिए और मिस गाइडेंस को हाईलाइट करना चाहिए कि कहाँ आप बच्चे गलत एग्जैक्टली, पकड़ रहे हैं। ठीक एग्जैक्टली है, दिस पॉइंट इज डेफिनेटली टेकन। केशव, यू गॉट द एक्सपीरियंस। सर। We'll see what best we can do. We'll discuss with our team. सर। Yugita is there with me only today. She is सर। not answering the question, asking the questions. तो सर। इसको हम करेंगे। सर। अच्छा, that is very very valuable advice. Now I have nothing further सर। to ask. Now you are open to questions from others.